Hello students, welcome to the quick revision tour of informatics practices for the session 2025-26. In this video, we will quickly revise some important concepts that are part of the CBSE informatics practices syllabus. Let us start with Python libraries. A Python library is a collection of Python modules that contain ready-to-use functions to perform a specific task in a program. Instead of writing the entire code ourselves, we can simply import a library and use its functions. This makes programming easier, faster, and more efficient. Python provides many libraries. Some of them are part of the Python standard libraries, which comes automatically when Python is installed. For example, the maths modules, the random module, the statics module. Apart from these are some very important libraries used for data analysis and visualization. According to the CBSE Informatics Practices syllabus, students mainly need to study pandas and matplotlib libraries. These libraries are very useful for working with data and representing data graphically. Now let us understand Python Pandas. Pandas is a fast and powerful open source data analysis libraries. It provides many functions to analyze, clean, explore, and manipulate large amount of data easily. To work with data in Pandas, we use data structures. A data structure is a way to store and organize data so that it can be accessed and used efficiently. In pandas, there are two main data structure, series and data frame. Series, it is a one-dimensional labeled array, and data frame, it is a two-dimensional table-like structure that store data in row and columns, similar to a spreadsheet of database table. Data structures make it very easy to handle and analyze large data set in Python. So students, this was a quick introduction to Python libraries and pandas. Now to make this concept easier and clear for everyone, I will explain the remaining topics in Hindi step by step according to the CBSE Informatics Practices syllabus. So let us continue and understand this concept in detail in Hindi. अब हम बात करेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पंडास के डाटा स्ट्रक्चर हैं, एक सीरीज हो गया हमारा और एक डेटा फ्रेम हो गया। तो पहला जो सीरीज होता है हमारा वन डायमेंशनल में होता है, मीन्स जो भी इसमें डेटा होगी वह एक ही डायमेंशन में होगी। जो डेटा फ्रेम है वो हमारा टू डायमेंशन में है, मीन्स एक हमारा वर्टिकल और एक हमारा हॉरिजॉन्टल, मीन्स एक टेबल के फॉर्म में। इस तरीके से हमारे एक ही कॉलम में होता है सीरीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। बट डेटा फ्रेम हमारा रो और कॉलम, इसमें ए हमारी सभी रो हो गई और ए हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। जो वर्टिकल होते हैं कॉलम्स होते हैं। सीरीज़ में हमारे जो डेटा स्टोर होते हैं वो वन टाइप में ही होते हैं। बट जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक सिर्फ इंडेक्स होता है, बट इसमें दो डायमेंशन है, तो इसीलिए दो इंडेक्स होंगे, एक हमारा रो इंडेक्स और एक हमारा कॉलम्स नेम या कॉलम इंडेक्स बोल सकते हैं, कॉलम्स नेम ही बोलते हैं इसे, रो और कॉलम। ये हमारा एक लिस्ट के जैसे दिखता है, जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी डेटा हम रखेंगे तो एक लिस्ट के जैसे ही हमें दिख रहा है, लेकिन ये हमारा एक एक्सेल शीट या टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। आप इसको, इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर देखिए, क्या यह हमें लिस्ट के जैसे दिख रहा है, तो हमें एक टेबलर फॉर्म में दिख रहा है, इस तरीके से है तो एक टेबल के फॉर्म में। सीरीज में जो साइज़ होती है सीरीज़ की, वह इम्यूटेबल होती है, वह चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो म्यूटेबल होती है, वैल्यू को हम म्यूटेबल कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में ऐसा नहीं है, डेटा फ्रेम में दोनों साइज और वैल्यू दोनों हमारे म्यूटेबल होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि सीरीज का क्रिएशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो वेल दैट बिफोर क्रिएटिंग सीरीज और डेटा फ्रेम हमें pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है आइडियली में। तो उसके लिए जो हमारे सिंटैक्स हैं वह import pandas as pd होता है। यहाँ पर जैसे हम लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल आई होगा, import pandas as pd। pd हमारा एलियास नेम होता है या हम डायरेक्टरी नेम बोल सकते हैं। तो हमें सीरीज अगर क्रिएट करना है तो पहले हमें सीखेंगे कि हम एक एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। एम्प्टी का मतलब हो गया कि उस सीरीज में कुछ है ही नहीं, कोई डाटा है ही नहीं।
तो जो भी प्रोसेस है उसको हम फॉलो कर लेते हैं कि हमने लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट कर लिया, देन उसके बाद हमने एस इक्वल pd डॉट सीरीज और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, प्रिंट कर दिया हमने यस से। अब ये जो हमारे पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, कोई हमने पैरामीटर्स इसमें दिया ही नहीं, तो ये हमारा सीरीज क्या हुआ, एम्प्टी ही हुआ। और एक और चीज़ कि सीरीज जब भी हम क्रिएट करते हैं, सीरीज का यस जो होता है वो कैपिटल रहना चाहिए। पीडी यहाँ पे हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने पीडी के नेम से इसको इंपोर्ट किया हुआ है इस लाइब्रेरी को, इस वजह से हम यहाँ पे हमेशा पीडी लेकर चलेंगे। यहाँ पे आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पे जो आपने नेम मेंशन किया हुआ है, जिस नेम से आपने इंपोर्ट किया हुआ है, सेम वही नाम आपका यहाँ पर भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कोई और नाम रख लिया और यहाँ पर आप पीडी लगा कर चल रहे हो तो वहाँ पे एरर आएगा, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि एरे से कैसे हम एक सीरीज को क्रिएट करते हैं। एरे से क्रिएट करने से पहले हमें नमपाई को इंपोर्ट करना होगा। नमपाई को भी हम वैसे इंपोर्ट करेंगे जैसे हमने पंडास को इंपोर्ट किया। न्यूमेरिकल पाइथन भी हमारा एक लाइब्रेरी है पाइथन का, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट पंडास एज पीडी, देन उसके बाद इंपोर्ट numpy न्यूमेरिकल पाइथन एज np। यहाँ पे हम एक डाटा का वेरिएबल ले लेंगे, डाटा इक्वल हम लिख लेंगे np डॉट एरे, ब्रैकेट में हमें जो भी लिस्ट में रखना है हमने इसे 10, 20, 30 एंड 40 हमने रख लिया और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। ये हमारा डाटा में एक एरे तैयार है। अब इस डेटा से हम सीरीज क्रिएट करेंगे, तो सीरीज के लिए भी हम एक वेरिएबल रख लेते हैं s1 इक्वल pd डॉट सीरीज, और इस डाटा को यहाँ पर हम पास कर देंगे डाटा। प्रिंट जब हम करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, क्योंकि हमें s1 को प्रिंट करना है तो s1 करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज s1 के नाम से है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग सीरीज में 0 से होती है, तो 0, 1, 2 एंड 3 होगा, और यहाँ पर 10, 20, 30 एंड 40 होगा। इस तरीके से ये हमारा एक एरे से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं सीरीज को। तो लिस्ट आप जानते हो कि लिस्ट हमारा जब भी बनता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी वैल्यू होता है, कॉमा देके हम चलते हैं, वो हमारा लिस्ट होता है। लिस्ट का जो पहचान ही है, आइडेंटिफाई करना होता है, हमें पता हो जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इट मीन्स ये हमारा एक लिस्ट है। तो एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे लिस्ट 1 इक्वल, यहाँ पे हमने रख लिया 10, 20, 30 एंड 40, ये हो गया। अब हमें पास करना है, जैसे हमने यहाँ पर डाटा को पास किया था, सेम इसी जगह यही प्रोसेस फॉलो करके हम लिस्ट 1 को पास कर देंगे। तो सेम वही करेंगे, आउटपुट हमारे पास वही एग्जैक्ट आएगा। मैंने सेम वैल्यू यहाँ पर भी रख लिया और यहाँ पर रख लिया, क्योंकि वो आउटपुट आपको क्लियर रहे, क्या समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जैसे कि अगर मैं इसे फ्रेश एक बार बना के अगर आपको मैं दिखा दूँ, इस तरीके से, देन इसके बाद हम क्रिएट करते हैं सीरीज s2 इक्वल pd डॉट सीरीज, और इस लिस्ट 1 को यहाँ पे पास करेंगे, लिस्ट 1 के वैल्यू को। आप इसके अंदर भी इस लिस्ट को, जो यह वैल्यू है, इसके अंदर भी रख करके बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलग से एक वेरिएबल पास करके रखो। प्रिंट s2, आउटपुट हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 पर 10 है, 1 पे 20 एंड 30, 40 एंड 50, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्शनरी की, कि डिक्शनरी से हम कैसे क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप जानते हैं। और पहली चीज़ कि हमारी जो डिक्शनरी होती है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है,
जब भी बनेगा। और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है की एंड देन सेकेंड होती है उसकी वैल्यू, वैल्यू होती है। की के अंदर हमारी वैल्यू होती है। तो अगर हम एक यहाँ पर डिक्शनरी बनाएं, डिक्शनरी क्रिएट करते हूँ, उससे पहले मैं एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट ही करके दिखा दूँ आपको। आपको ध्यान देना है कि जितनी बार आप प्रोग्राम लिखोगे उतनी बार अलग अलग प्रोग्राम अगर लिख रहे हो तो आपको पंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। एक बार इंपोर्ट हो गया प्रोग्रामिंग करते समय ठीक है, लेकिन अगर उसी में आप कोई दूसरा और पेज ओपन कर रहे हो तो आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। इंपोर्ट pandas एज pd, डिक्शनरी हमें बनाना है। हमें डाटा इक्वल करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में हम रख लेते हैं a पर 100, b, a और b हमारे एक स्ट्रिंग है, इस वजह से हमने यहाँ पर दिया हुआ है कोटेशन मार्क्स 200, c 300 एंड d 400। अब जब हम एक डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे तो देखेंगे आउटपुट में क्या डिफरेंस आते हैं, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज 1 इक्वल pd डॉट सीरीज, और किसको हम पास करेंगे, इस वैल्यू को, डाटा को। हमने यहाँ पे लिख दिया डाटा और क्लोज कर दिया। अब जब प्रिंट आप करोगे, प्रिंट किसको करना है हमें, सीरीज 1 को, सीरीज 1। अब आउटपुट में क्या आएगा, रिजल्ट। जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए हमारा जो इंडेक्स है वह की उसकी इंडेक्स हो जाती है सीरीज में। ए पर हमारा 100, बी पर 200, सी पर 300 एंड एक आप बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब हम एक डिक्शनरी से बनाते हैं तो सीरीज की जो इंडेक्सिंग होती है वह क्या होती है, की होती है उसकी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और वैल्यू तो वैल्यू के अंदर ही जाएगी। जैसा अभी आप एक एरे से बनाए या लिस्ट से बनाए तो क्या दिखा कि हमारा जो सीरीज है, सीरीज का जो इंडेक्स है वह 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। बट जब हम एक डिक्शनरी से बनाते हैं तो डिक्शनरी की हमेशा इंडेक्स में चली जाती है, वो इंडेक्स हो जाता है। अभी हम लोग डेटा फ्रेम में भी आगे देखेंगे कि डिक्शनरी से बनाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर वैल्यू से कैसे हम बनाते हैं। अगर स्केलर वैल्यू से बनाना है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा यहाँ पर एक लाइब्रेरी pandas की इंपोर्ट ही है, हम एक इंडेक्स के लिए रख लेते हैं कुछ, या डायरेक्ट हम एक बनाते हैं कि हमने इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से, और यह इक्वल हम क्या करते हैं, pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे हमने रख लिया 10 कॉमा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉमा दे करके इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल, इंडेक्स इक्वल आपका लिस्ट में हमने कर दिया ए बी सी और डी, इस तरीके से एक लिस्ट पास कर दिया और पैरेंथेसिस को क्लोज किया। जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट यस, तो जो आउटपुट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। आपका जितने भी इंडेक्स है वो तो आएंगे ए बी सी डी। 10 की वैल्यू है, सभी वैल्यू स्केलर हो जाएगी, 10 सभी में आ जाएगा। इस तरीके से एक स्केलर वैल्यू पे होता है। अब इस जगह पर आप 10 के जगह पर आप कुछ भी रख सकते थे, 10 + 2 या 10 × 2, तो 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाती, 12 आ जाती सब पर। अगर 10 × 2 होता तो फिर हमारे पास 20 होता। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग भी रख सकते थे कि अगर आप स्ट्रिंग आप नेम
रोहित रख रहे हैं तो सब पर आपका रोहित रोहित होकर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये स्केलर वैल्यू से होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो दो तरीके से हम सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक इंडेक्स और दूसरा है एक इंडेक्स है, दूसरा है पोजीशन नंबर। इंडेक्स लेवल क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ सीरीज यहाँ पर बना हुआ है, अगर इस सीरीज को अगर हम प्रिंट करते हैं, अगर हम लिखते हैं प्रिंट प्रिंट यस, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास 10 20 30 एंड 40। इंडेक्स प्लेस क्या होगा 0 1 2 3, यही होगा। तो अगर इंडेक्स के बेस पे हम इसको ले रहे हैं या इसके पोजीशन बेस पर ले रहे हैं, तो 0 पर क्या है 10 है, यस 1 पर क्या है 20 है, तीसरे पोजीशन पर क्या है इंडेक्स नंबर पे 40 है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि अगर हम इंडेक्स पोजीशन से ले रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट प्रिंट यस, और पोजीशन पोजीशन हम ले रहे हैं 2, यहाँ पे हमने लिखा 2, क्या आएगा 2 पर क्या है 30 है, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास 30। अगर हम लेवल बेस पर ले रहे हैं, जैसा यहाँ पर हमने इंडेक्स ही प्लेस कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि ये सीरीज जो है इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि यस इक्वल pd डॉट सीरीज, एक वैल्यू है 10 20 30 40, कॉमा हमने इंडेक्स के लिए क्या कर दिया, इंडेक्स इक्वल हमने रख दिया 1 2 3 और 4, इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे लिस्ट बना के क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को। तो यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स होगा प्रिंट करेंगे तो वह 1 2 3 और 4 होगा, यानी कि अब लेबल बेस्ड हो गया, हमने लेबल दे दिया। ये जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पे 1 2 3 रखा है, यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वही हो। तो हम जब इसको एक्सेस करेंगे लेवल बेस से करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर किया यस में हमने 2 पोजीशन रखा है, सेम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे प्रिंट यस, और लेवल क्या है इसका 3, 3 पे हम देखते हैं तो क्या बनेगा, क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आएगा हमारे पास 3 पर क्या है 40 है, सॉरी सॉरी 30 है, ए 3 ये वाला, इस पर हमारे पास क्या है 30 है, तभी हमारे पास 30 है इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि हम सीरीज को स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्लाइस मतलब बीच से हमें कोई उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो हम रेंज में स्लाइसिंग करते हैं, जिसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप, या आप इसे बोल सकते हो कि स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप, मीन्स ट्रिपल एस, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट मतलब किस नंबर या किस लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कहाँ तक हम जा रहे हैं, और स्टेप कितने की गैपिंग हमें करनी है। तो अगर यहाँ पर एक सीरीज जैसे बना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरीके से एक हमारे पास सीरीज है। इस सीरीज का नाम है ES3, सीरीज का नेम है। अगर हमें एक्सेस करना है या हमें स्लाइस करना है, हम चाहते हैं कि थर्ड पोजीशन से आए हमारे पास 60 तक, इतना है पूरे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसका ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर ट्रिपल एस का यूज़ करेंगे, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं एंड करेंगे और स्टेप दे देंगे। हमें बीच में अगर गैपिंग चाहिए तब देते हैं, नहीं तो स्टेप छोड़ देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्टेप नहीं देंगे तो स्टेप वाली मतलब 3+1 मतलब एक स्टेप गया, एक स्टेप यहाँ आया, एक स्टेप यहाँ आया, हमारे एक का होता है। और एक चीज़ और ध्यान देते हैं, जैसे पहले बता देता हूँ कि स्टार्ट करेंगे आप कहाँ से करेंगे 3 से, तो प्रिंट यस 3 नाम है, यहाँ पे हमने लिखा यस 3
और इसमें हम लिखते हैं कहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं 3 से, कॉलम स्टॉप हम कहाँ गए 6 तक, इस तरीके से। तो 6 तक गए हैं, तो जब भी हमारे पास 6 तक आएगा तो वैल्यू हमें एक्सेस करके 5 तक का ही देगा, -1 ही देता है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को हम रिवर्स ऑर्डर में भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम काउंटिंग करें यहाँ से तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें रिवर्स ऑर्डर में, जैसे अगर बाय डिफॉल्ट होता 0, 1, 2, 3 और इसकी जगह पर 10, 20, 30, 40 होता, तो उस केस में -1, -2, -3 और -4 ये रिवर्स ऑर्डर में बॉटम टू टॉप की तरफ अगर हम चलते हैं तो स्लाइसिंग हो जाते हैं इस तरीके से कि हम अगर स्लाइस कर रहे हैं तो हमारे क्या स्टेप होते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप का। अब इसमें हम लेवल बेस से भी कर सकते हैं और उनके पोजिशनल बेस से भी कर सकते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमें 1 से 5 तक के वैल्यू को प्रिंट करना है तो प्रिंट सीरीज का नेम और फ्रॉम 1 to 5 हमने स्टेप यहाँ पर नहीं दिया तो इस वजह से कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम लेवल बेस से ले रहे हैं तो प्रिंट सेम इसी प्रकार, अगर हमें सीरीज के एलिमेंट्स को कंडीशनल बेस पर अगर हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर एक सीरीज बना हुआ है इंपोर्ट pandas spd, वैल्यू में हमारे पास 5, 20, 10, 80 एंड 25 है, एक हमारा लिस्ट है, एक इंडेक्स का IDX से एक लिस्ट है जिसमें ABCDE करके है। हमने सीरीज को बनाया yes इक्वल pd डॉट सीरीज, डेटा के प्लेस पर हमने वैल्यू को पास किया और इंडेक्स में हमने यहाँ पर इंडेक्स को पास कर दिया, इस इंडेक्स को। इस तरीके से अगर हम प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट में है, जैसे अगर हम देखते हैं, पहले हम इसका आउटपुट ही देख लेते हैं क्या रहेगा हमारे पास आउटपुट। तो A, B, C, D और E। ए पर क्या है हमारे पास 5, 20, 10, 80 एंड 25, ये हमारे पास सीरीज हो गए। अब सीरीज में अगर हम इसको कंडीशनल बेस पर एक्सेस करें, जैसे यहाँ पे पहला है कंडीशन कि प्रिंट यस ग्रेटर देन 20, तो बताइए आप ग्रेटर देन 20 कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर होगा वहाँ पे आपका ट्रू आएगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास A, B, C, D, E इस तरीके से। तो A क्या है ग्रेटर देन 20, फॉल्स। B पर 20 है, ये तो ग्रेटर देन है, तो इस वजह से ए क्या रहेगा हमारे पास, फॉल्स रहेगा, ए भी फॉल्स हो जाएगा। 10 है, ये तो ऑलरेडी लेस देन है, फॉल्स हो जाएगा। 80 पर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, और सी पर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। सेम अगर हम अपोजिट कर दें यहाँ पे कि प्रिंट यस ग्रेटर देन 20, कि यस है और यस का ग्रेटर देन 20, देन उस पर क्या आएगा हमारे पास आउटपुट, हमारे पास सिर्फ दो ही शो करेगा, यहाँ पर शो होगा वैल्यू जैसे ट्रू और फॉल्स का, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, बट हमने इस सीरीज के अंदर एक सीरीज को वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास जो प्रिंट होकर आएगा इस केस में सिर्फ ये आएगा कि डी और ई पर क्या होगा 80 और 25, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम चेक करके आउटपुट ले रहे हैं, इस तरीके से हमें। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सीरीज एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स मीन्स हो गया सीरीज की प्रॉपर्टीज, कि सीरीज के क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में। तो हमारे पास जो सीरीज में आते हैं एट्रीब्यूट्स, वो 8 एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक हमारा नेम होता है, साइज, शेप, हैश नाम, डी टाइप, एम्प्टी, वैल्यूज़ और इंडेक्स। इसमें से अगर हम वन बाय वन देखते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है इसका एक आउटपुट आपको दिखा देते हैं कि लिस्ट में एक लिस्ट बना हुआ है, इंडेक्स में हमने एक इंडेक्स रखा हुआ है, हमने एक सीरीज यहाँ पे क्रिएट किया। अब प्रिंट यस करते हैं, क्योंकि यस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीरीज का नेम यस। तो पहला जो हम देखते हैं, नेम को सेट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि यस नेम हमारा जो हो जाए माई सीरीज से हो जाए, तब वहाँ पर हम यस नेम डॉट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइज की बात करते हैं।
तो साइज मीन्स हमारा कितना इस सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, वैल्यू हैं, वो हमें काउंट करके देता है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू हैं, तो इस पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए 6 आएगा। जो थर्ड है हमारा शेप है। शेप का मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि हमारे यहाँ जो सीरीज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यह स्ट्रक्चर हमारा एक कॉलम में है तो यह इस तरीके से दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा 6,0 करके आया। 6 ओनली, 0 नहीं रहेगा, 6 ओनली रहेगा और कॉमा लगा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हैज नन। हैज मतलब है, नन मतलब नन वैल्यू कोई है या नहीं है। तो इसमें जो भी हमारे पास, अब बताइए क्या इस सीरीज में हैज नन है, नन वैल्यू है? हाँ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यस। तो इसका मतलब ये होगा ट्रू, इसकी ट्रू वैल्यू आएगी यहाँ। और देन इसके बाद है डी टाइप है। डी टाइप में हमारे इस सीरीज के में डेटा टाइप्स क्या है वो हमें शो होगा। तो डेटा टाइप्स हमारे पास कितने होते हैं? इंटीजर होता है जिसमें हमारे ओनली सिर्फ नंबर ही होते हैं, वही हमारे इंटीजर हो गए। देन इसके बाद क्या होता है हमारे पास? फ्लोट होता है। फ्लोट का मतलब क्या हो गया? जिसमें हमारे डेसिमल में नंबर होते हैं, 6.0.0 3.8 इस तरीके से, 4.9 इस तरीके से डेसिमल में जो आ गए वो हमारे फ्लोट हो गए। देन इसके बाद हमारे पास क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में जितने भी नंबर जो हों या फिर लेटर्स हों, वर्ड्स हों, वो सभी ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। और ये होते कैसे हैं? जैसे हमारे पास 6 है, हमने यहाँ पर कोटेशन लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिंग बन जाएगा। 6 है बट ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, तो यह एक ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर आप लिखते हैं नेम भी कर देते हैं तो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या आप 7.6 लिखते हैं, ये भी फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इस लिस्ट में या सीरीज में कोई भी एक वैल्यू हमारा फ्लोट हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया या नन हो गया, तो पूरा का पूरा जो डेटा टाइप होगा वो फ्लोट होगा। अब फ्लोट होने का मतलब कि जो भी वैल्यू हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो डेसिमल में होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले जो बताया था, मैं पॉइंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, मैंने लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वैल्यू जो है वो नन वैल्यू है, उसकी वजह से ये टोटल पूरा इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्टी का। तो बताइए क्या यह सीरीज हमारा एम्प्टी है, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स है। रीजन, क्योंकि इसमें वैल्यू हमारे हैं, तो ये हमारा एम्प्टी नहीं है, इसलिए इस पर क्या आएगा? आएगा फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में आएगा वो आएगा हमारा फ्लोट। नेक्स्ट जो वैल्यूज की बात होती है कि इसमें हमारे जो वैल्यू हैं वह हमें शो होंगे, वह भी लिस्ट में ही शो होंगे। हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट सीरीज का नेम डॉट वैल्यूज। देन उसके बाद हमारे पास क्या आउटपुट आएगा इस तरीके से 4 5 9 कैपिटल में रहेगा, 7 8 एंड 9 इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आएगा। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास इंडेक्स का। इंडेक्स को अगर हम प्रिंट करेंगे यस डॉट इंडेक्स, तो इंडेक्स पर जो भी वैल्यू रहेंगे जो आपने इंडेक्स से सेट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर, वो आपको शो हो जाएंगे। तो हम इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स में क्या आएगा? ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे इंडेक्स आएंगे। ये तो बात हो गई हमारे एट्रीब्यूट्स यानी एक सीरीज के प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वह इम्पोर्टेंट में हमारे जो शेप, साइज अक्सर पूछे जाते हैं, और एम्प्टी भी हम देख सकते हैं बट ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो साइज से, बट आपको पढ़ने सभी हैं, आपको ध्यान रखना है कि किससे क्या होता है। नेम से नेम हो चेंज सेट करने के लिए हो गया, साइज से हमें साइज पता चलती है। साइज और शेप में कन्फ्यूजन नहीं होएगा। शेप मीन्स हो गया स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, रो और कॉलम्स होती हैं, तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हो गई, 1 2 3 हमारे रो हो गए, तो हम क्या बोलेंगे 3 4 मीन्स यही इसका स्ट्रक्चर है।
पहले हम जब भी डिनोट करते हैं रो को डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, और ये हमारे कॉलम्स को। बट सीरीज में क्या है, कॉलम ही है, तो जितने भी रहेंगे हमारे पास 6 रोज हो रही है, मीन्स 6 वैल्यू मीन्स 6 रोज, तो हम क्या दिखाएंगे 6 कॉमा, बस ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हम सीरीज मेथड पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें 7 मेथड होते हैं। एक हमारा काउंट है, काउंट, हेड, टेल, ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिख सकते हैं ए और ए एग्जाम पर्पज से। ये हम आपके सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, सम और ऐड। तो पहले हम काउंट को देखते हैं। जैसा हमारा यहाँ पर एक सीरीज बना है, ऊपर यहाँ पर हमने दिखाया है, इस तरीके से सीरीज हमारा पूरा बना है। अब इस सीरीज का अगर आउटपुट आप देखें तो फिर से मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। सीरीज का नेम है यस, और इसका जो आउटपुट है, हमारा आउटपुट आ रहा है ए बी सी डी ई और एफ। इस पर वैल्यू हमारी 4 5, यहाँ पर नन वैल्यू है 7 8 और 9। ये सभी फ्लोट में है क्योंकि एक नन वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से सभी हमारे फ्लोट हो जाएंगे और डेटा टाइप इनका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ऐसे रहेंगे, टाइप फ्लोट रहेगा। नेक्स्ट, अब इसमें हम जो काउंट की बात करते हैं तो प्रिंट एस डॉट काउंट अगर हम करते हैं तो इस सीरीज में पूरे एलिमेंट्स को काउंट करके हमें शो होगा। अब काउंट इसमें से किसको किसको करेगा, किसको नहीं करेगा। अगर नन की जगह पर कोई वैल्यू होती यहाँ पर तो उसको काउंट करता, अदरवाइज नहीं करेगा। मीन्स 1 2 3 4 5 काउंट हमारा क्या करता है, नन को छोड़ देता है, नन को क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, उसको काउंट नहीं करेगा। बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं, लेफ्ट एलिमेंट्स, उनको काउंट करके हमें दिखाएगा। तो हमारे पास 6 हैं बट हमें क्या शो होगा 5। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हेड है, हेड और टेल। हेड और टेल का मतलब क्या होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट दो तरह से इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि हेड अगर लगा हुआ है, अगर हमने कहा प्रिंट यस डॉट हेड और यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, हमने क्लोज किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 5 वैल्यू आती है। मीन्स हेड क्या हो गया आपका टॉप से, तो टॉप से 5 वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमने 1 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से हमने एक सीरीज बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, जैसा मैं अभी बता देता हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हेड या टेल होता है, बाय डिफॉल्ट जो इसमें काउंटिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट 5 होती है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं दोनों कंडीशन में बता देता हूँ। ये पहला केस हो गया कि हमने लिखा ओनली हेड, उस केस में क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, काउंट होकर आएगी, सॉरी शो होगी, डिस्प्ले होगी। अगर हमने लिखा यहाँ पर हेड 3, फिर अब उस केस में क्या हुआ 1 2 3, यहाँ तक ही वैल्यू हमारा डिस्प्ले होगा, प्रिंट होगा। अगर हमने, अब एक केस और होता है, सेकेंड केस की मैं बात करूँ, सेकेंड केस जहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4 है, यहाँ पर वैल्यू हमने लिख लिया ए बी सी डी इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर प्रिंट किया हेड और यहाँ पर हमने वैल्यू पास आउट कर दिया 6। उस केस में क्या होगा, जितने एलिमेंट्स हैं हमारे, जितने भी हैं दिख रहे हैं वही शो होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ एरर आएगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा जितने एलिमेंट्स हैं वही शो होंगे। और इनकेस हमने यहाँ पर ओनली हेड ही लिखा है, या फिर हमने यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, हमने इस तरीके से ही रखा है इसको, ओनली हेड, और सीरीज का नेम हमने रख दिया, और इसके आगे हमने क्या कर दिया, प्रिंट लिख दिया, प्रिंट। हमने इतना ही रखा, वैल्यू है 4। अब क्या आएगा, जितने हैं उतने शो होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अब एक्स्ट्रा या फिर कम आ जाएगा।
तो जस्ट जैसे हमारा हेड वर्क करता है, जस्ट अपोजिट हमारा टेल का वर्क होता है। मतलब हमारी जो वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी, अगर हम इसमें देखते हैं तो बॉटम से टॉप की तरफ, मतलब 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर एक टेल के लिए हो जाएगा। यार आप इमेजिन भी करो कि अगर कोई ह्यूमन होता है फिर तो क्या होता है, टॉप होता है, उसका हेड होता है मतलब टॉप से, देन उसके बाद क्या होता है, टेल होता है मतलब बॉटम से, ठीक है, टेल ही ना होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप कंफ्यूज नहीं होना, हेड की बात आएगी बाय डिफॉल्ट कोई यहाँ पे पैरामीटर इस तरीके से पास नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें 5 वैल्यू को हमें क्या कर देना है, हमें डिस्प्ले कर देना है। टेल की बात करें, टेल में अगर आ गया कोई पैरामीटर पास नहीं है तो आप ओनली 5 वैल्यू जो होंगे उसे आप डिस्प्ले करा दोगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ ज़्यादा कर दो, 5 ही, ओनली 5। लेकिन अगर पैरामीटर पास है तो फिर आपको वहाँ पर देना पड़ेगा कि हाँ बॉटम से, टेल के लिए बॉटम से 2 और हेड के लिए आपके टॉप से 3, अगर 3 है तो 3 दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है मिनिमम, मैक्सिमम, सम और ऐड का। इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं न्यूमेरिक सीरीज पर। ऐसा नहीं कि हमारे सीरीज में कोई स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है, फ्लोट हो जाएगा बट न्यूमेरिक पर ही वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग भी लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है तो भी वहाँ पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखना। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट में हम बात करें, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा मिनिमम, इसके लिए एक सीरीज हम बना लेते हैं, ये दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर जैसे एक सीरीज है, हम इसको ओनली डिस्प्ले करते हैं 0 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले आपको कर दिया, वैल्यू हमने दिखा दी आपको 11 13 14 10। इस तरीके से हमारा एक सीरीज है, इस सीरीज का नाम है यस। अब हम इसमें मिनिमम की बात करें, रेंट एस डॉट मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, सबसे कम है 10 है, तो वैल्यू क्या बनकर आएगा आपके पास 10। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमारा 14 है, तो क्या प्रिंट होकर आएगा आपके पास 14। अगर हम सम की बात करें तो सम पर क्या आएगा, सम पर अगर हम बात करें तो सम यहाँ पे है, अगर हम सम को देखें तो सम का मतलब होता है सबको ऐड कर देना है एक दूसरे में, मतलब 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 10 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 2 3 5 6 और 10, क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, टोटल 60 काउंट होकर के आ जाएगा। सम सम मतलब हम पूरे जितने हैं सभी को हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमारा यस डॉट ऐड है, यस डॉट ऐड 5 मतलब यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू रखा उस सभी सीरीज के सभी एलिमेंट्स में उतना ऐड होगा। इसका मतलब 11 प्लस 5 12 प्लस 5 13 प्लस 5 14 प्लस 5 एंड 10 प्लस 5। ध्यान रखिएगा कि यह सभी वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल सीरीज पर ही एप्लीकेबल होती है। हमने ऐसा नहीं कि आप कोई और वैल्यू रखे हुए उसमें एप्लीकेबल हो गया, इसलिए मैंने इस सीरीज पर नहीं दिखाया, आपको एक न्यू सीरीज बनाकर दिखाया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा आउटपुट इस सीरीज का, अगर हमने यह प्रिंट किया यस डॉट ऐड करके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 17 18 19 एंड 15, इस तरह से 0 1 2 3 एंड 4 ये हमारा सीरीज में ऐड होकर के डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ऐसे होते हैं, इसमें हमारा जो एक ऑपरेटर के थ्रू होता है और एक मेथड के थ्रू होता है। जैसा कि अभी हम बताए आपको ऐड 5 करके सबट्रैक्ट मॉड्यूल्स या डिवाइड ये सब आप कर सकते हैं, एक मेथड के थ्रू हो गया। पहला जो होता है हमारा ऑपरेटर थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन, देन उसके बाद हमारा मॉडुलस हो गया।
एज यू नो प्लस सिंबल का क्या काम है, सब्ट्रैक्शन का क्या काम है, मल्टीप्लिकेशन का क्या काम है, ये हमारा डिवाइड के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे देखें कि ये जो हमारा फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन डिफरेंस दोनों में बता देता हूँ पहले। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, सब में क्या है, ये हमारा 1 + 5 मीन्स 6 करने के लिए है, ये हमारा 5 - 1 करते हैं 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई के लिए होता है 5 × 2 = 10। ये हमारा डिवाइड करता है 5 ÷ 2 मीन्स क्या हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट ये भी हमारा डिवीजन है, बट ये हमारा फ्लोर डिवीजन होता है, ये हमारे डेसिमल प्लेस को हमें नहीं दिखाता है, ओनली हमें क्या शो करेगा, जैसे हमने 5 ÷ 2 किया तो यहाँ पे 0.5 आया, बट हमारा जो रिजल्ट आएगा ओनली 2 आएगा, डेसिमल प्लेस को हटा देता है। मॉडुलस हमारा क्या करता है, ओनली रिमाइंडर हमें देता है। रिमाइंडर मीन्स अगर हम 5 ÷ 2 करते हैं तो अगर आप देखो कि 5 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो कितना 2 टाइम गया 4 आया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 1 आएगा। ये हमारा मॉडुलस का काम होता है। ये तो हमारे ऑपरेटर्स के यूज हो गए जिसमें आपको कंफ्यूजन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस में होता है, तो क्लियर मैंने कर दिया। ठीक है, हमारे पास 2 सीरीज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सीरीज 1 एंड सीरीज 2। ठीक है, दोनों का आउटपुट हम पहले आपको शो कर दें। S1 पर हमारा A B C